Good morning, students. I have given a problem in the last class. Unbounded problem गोटे दिया था. So this is the question. Solve the LPP graphically. Z minimum is equal to 1.5 x1 plus 2.5 x2. Okay. So what you have to do here first कौन को आइले तमरो जे first of all you have to changing the inequation of the constraints to equation and solving it. कौन हम x1 plus 3x2 is equal to 3 and x1 is equal to 3 minus 3x2. Then the table x1 x2, if I took x2 is equal to 0, then it becomes 3. If I took x1 is equal to 1, it becomes 0. The second one is your x1 plus x2 is equal to 2, x1 is equal to 2 minus x2. Then we have x1 x2 2 0 0 2. Okay, इतकी हमरो हे गला. आपर ओरिजिन टेस्ट सिंस बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू अच्छी ओरिजिन टेस्ट रे हमरो फॉल्स हो जिवो डज नॉट सैटिस्फाई हबो. ओके, सो नाउ ओरिजिन टेस्ट. Origin test. So what it says, since both equations are not satisfying, the origin, therefore the shading will be away from origin. ओके, दीटा देखो केमती सैटिस्फाई होनी सेटा देखि दे परियो हमें. सपोज एटे हमें 0 पकेबा, सो 0 plus 0 is greater than equal to 3, which is equal to false. 0 plus 0 is greater than equal to, एटा भी false. ए दीटा देखो false अछि, सेति पे हमें origin test not satisfied, away from origin. Then we'll go for the graph. Graph को जीवा दे. Okay, graph टेबल दीटा मु मिटे देछि. सो हाईएस्ट हमरो 3 थिला. 1 2 3 1 2 3. এটা origin. आता x axis पटे x1 and y axis पटे हमें x2 नोचे. दिस इज द नॉर्मल प्रोसीजर. 1 2 3 हिला. या पर हमें कोन करिया, एबे ग्राफ टा को ड्रा कर दवा. फर्स्ट थिला हमरो 3 0 and 0 1. 3 0 0 1. so এটা आता थिला x1 plus 3x2 is equal to 3. so सेटिंग टा ऑब्वियसली मु कहितली ऊपर पटे हबो बोली करी मु खाली गोटे एम्ति एरो मार्क टी देई देछि. हैला, ऊपर पटे हबो. डार्क जेते बळे हबो सेते बळे करबी. ए पटे हबो. then आरटा 2 0 and 0 2. 2 0 and 0 2. this is your x1 plus x2 is equal to 2. एटा भी ऊपर पटे हबो. so the feasible reason will be this one. So this area
will be your feasible region. As we know, it is unbounded. Okay, so if I name এটা হবো আমার A, এটা হবো আমার B, and this will be your C. So ABC is our unbounded feasible region. Whenever you have an unbounded feasible region, again मु feasible region टा देखो एटा 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 एपडू पूरा जीवो. ओके, दिस एरिया टा. ओके, एरो तो कोऑर्डिनेट जाना अछि. नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, एटा हमको जाना अछि 0 2. C टा जाना अछि हमको 3 0. For B we have to solve it, these two equation. x1 3x2 is equal to 3, x1 plus x2 is equal to 2. Subtract, cancel. 2x2 is equal to 1, x2 is equal to 1 by 2. Therefore x1 is equal to 3 by 2. Hence B रो कोऑर्डिनेट हला 3 by 2 1 by 2. ओके, गॉट इट. बर्तमान आमे z मिनिमम पाखु जीवा. हे गला मु ओरिजिन टेस्ट लिखै दोची, सिटे लिखि देबी. नाउ z minimum, okay, 1.5 x1 2.5 x2. therefore z is equal to 0 2 अछि. 0 2 कहले 0 plus 2.5 into 2, that is 5. zb एठी 1.5 कहले that 3 by 2 into 3 by 2. 2.5 कहले 5 by 2 into 1 by 2, which is equal to 4 LCM 3 3 9 5 14, that is 7 by 2, 3.5. and ZC टा हेले एटा फर्स्ट टा 0, 1.5 into 3, सेकंड टा 0 हो गला, इट इज 4.5. so this one B is the minimum. गोटे 4.5, गोटे 5 आ गोटे 3.5. तो तीनटा जाकरू हमरो मिनिमम वैल्यू टा हला कोटा B. तो ग्राफ टा लिखै दोची, दिस इज द मिनिमम पॉइंट. नाउ Z is minimum, therefore Z is minimum at B, which is equal to 3 by 2 1 by 2. hence Z minimum is equal to 3.5, x1 is equal to 1.5, x2 is equal to 0.5. फ्रैक्शन भी रखि परिया, किछि असुविधा नै. हमें फ्रैक्शन रखले ही बेटर होबो. ओके, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ योर. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर अनबाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन. ओके, तो एटा हमें अनबाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन कले एमती हमरो गुडाए क्वेश्चंस अछि. तो मु गोटे क्वेश्चन तुमको देबी, सेटा तुम माने द नेक्स्ट क्लास रे मते करिकी देखैबो. देन we'll go for another method of solving. आ गोटे मेथड रे को सॉल्व करबा, सो दैट हमें एथि हमरो आंसर पाई परिबा. ओके, सो we'll have minimum z हे गेला एटा.
Z minimum is equal to 20x1 plus 10x2. Okay, x1 plus 2x2 is less than equal to 40. Okay, then 3x1 plus x2 greater than equal to 30. 4x1 plus 3x2 greater than equal to 60. And I think that unbounded न हो पारे, might be bounded ही पारे. Okay, so तुम माने कला पर जाना पड़ियो बाउंडेड हेले भी तार मिनिमम आसी पारियो, किसी प्रॉब्लम नहीं. मु आउ गोटे दउजी जोटा कि अनबाउंडेड कंफर्म हबो. ओके, सो दिस इज योर Z minimum is equal to 5x1 plus 2x2 subject to 0.5 x1 plus x2 less than equal to 2. Then x1 plus x2 greater than equal to 2. Then minus x1 plus 5x2 greater than equal to 5. And x1 x2 greater than equal to 0. Okay, so these are the two different questions I have given. एटा z minimum अछि भाबुची एटा बाउंडेड हे जिवो, बाउंडेड रो भी मिनिमम आसी पारे, मैक्सिमम तो आसीबो बाउंडेड रो, मिनिमम जदि पचारथियो मिनिमम आसीबो. एठी हमरो लेस देन अछि माने अनबाउंडेड हबो. ओके, so you can have the answer. Okay, now we'll go for the next method, that is your simplex method. Okay, so before that going to simplex method, we have to know some definitions so that हमको helpful होगा. Okay, so से definition हमें से देखो सीखिबा. Okay, got it? Baby? Now एटा हमरो सिंप्लेक्स मेथड कन्फर्म पड़िबो. सिंप्लेक्स मेथड को धर करी हमरो प्रॉब्लम्स एग्जाम रे आसीबो. ओके, सो सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी बाय सिंप्लेक्स मेथड. मोबे मेथड विषय रे कहिबे नै, ता पूर्वरो आई हैव टू गिव सम डेफिनेशंस. डेफिनेशन जे हमको हम जानिया पड़िबो. सो देन विल हैव तापरे हमें तेरे सॉल्यूशन करिया. फर्स्ट, स्लैक वेरिएबल. ओके, स्लैक वेरिएबल, द नॉन नेगेटिव वेरिएबल the non-negative variable which is added to
the left hand side of the constraints to convert it into equation is called the slack variable. Okay, it's called the slack variable. Okay, so as you know, आमे ग्राफिकल मेथड रे इन इक्वेशन जाको को इक्वेशन कर दउथिले, आमे इक्वेशन कर देला परे कोन करथिले ताको आमे सॉल्व करि करी आनुथिले, किंतु एठी आमे से बोलिया करिवानी बिकॉज़ जदि ग्रेटर देन इक्वल टू अछि लेस देन इक्वल टू अछि तो डायरेक्ट इक्वल को इट मे बी सम मिस्टेक हे जाई पाए, सेति पई टू अवॉइड दैट आमे एठी नॉन नेगेटिव दैट इज पॉजिटिव वेरिएबल गोटे ऐड करिवा टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट. ओके, द नॉन नेगेटिव वेरिएबल व्हिच इज एडेड टू द लेफ्ट हैंड साइड. तो एटा केते बेले ऐड होबो, द कंस्ट्रेंट इज if the constraint is less than equal to sign, okay, less than equal to sign, to convert it an equality we have to add a positive number. Okay, तो पॉजिटिव नंबर गोटे हमको ऐड करिया पड़ियो टू कन्वर्ट इट. तो सेटा ही स्लैक वेरिएबल, दैट इज ओनली स्लैक वेरिएबल. फॉर एग्जांपल देखो हमरो 2x1 + 5x2 वी आर राइटिंग लेस देन इक्वल टू 2. तो एटा दुईटा बड़ एटा सानो, तो एठी आमे जदि किछि ऐड करिया ताले बराबर हबो. सो इफ आई ऐड समथिंग 2x1 + 5x2 plus s1 is equal to 2 इक्वल हो गला. सो एथी जो s1 is called as slack variable. s1 is called as slack variable. Okay, got it? बुझा पड़िला तमन को जे एथी हमरो s1 टा slack variable हबो. आउ जदि आउरी अछि इक्वेशन, सपोज यू हैव अनदर इक्वेशन, बीटा इक्वेशन थिबो 6x1 + 5x2 is less than equal to 7. So 6x1 + 5x2 plus s2 is equal to 7. तो इटे s2 टा हला हमरो slack variable हेला बुझा पड़िला. x1 x2 जहाँ रोचे these are the decision variables and s1 s2 are slacked variables. Remember, since these are non-negative, therefore s1 and s2 always greater than equal to 0 ही हबो. सबु जेकर वैल्यू हम माने सबु बेले more than 0 हबो. So this is your slack variable. And so next, okay, got it? लिखी दियो. Next is your surplus variable. Okay, next is your surplus variable. Surplus variable. Now
सेटा हमरो लेस देन इक्वल टू साइन थिला बेले if you have greater than equal to sign then that will be your surplus variable. If a constraint has greater than equal to sign, in order make it an equality, we have to कौन करिया पड़ियो सब्सट्रैक्ट करिया पड़ियो सेटा ऐड करथिले एथि सब्सट्रैक्ट करिया पड़ियो. We have to subtract a positive number. Okay, we have to subtract a positive number from its left hand side. Okay, left hand side. So that is your surplus variable. Okay, now what I will write here? Thus the positive variable non-negative, that is your positive. The positive variable which is subtracted from the left hand side of the constraint constraints. Okay, to convert its equation convert it into equation is called surplus variable. Okay, so suppose you have there are two constraints. Okay, now we have two constraints, both are greater than equal to 0. आपको हमें is equal to करथुले से प्रोसेस रे करथुले ए प्रोसेस रे भी करबा. इन दैट प्रोसेस हमें is equal to करिकरी x पाई सॉल्व करिकरी कर दउथिले, किंतु एठी हमको कोन करियो पड़ियो, एठी हमको we have to calculate एटे हमको exactly value आसीबो. So remember our solution पे there are two methods as I told you of an LPP. So एठी first एठी जो LPP हमें graphical कले that will be little bit माने एते accurate न होई पारे, but in case of simplex method रे जते बेले हमें solve करिबा that will be more correct और तारो आंसर टा almost exactly हमरो आसी जीवो. Remember therefore normally we have to use एठी हमें सिंप्लेक्स मेथड ही यूज करबा. तो कहिथिबो जदी अदरवाइज हमें ग्राफिकल रे भी कर परिया. तो एठी सपोज आई हैव टू प्लस s1 is equal to 3. Similarly x1 plus 5x2 plus s2 is equal to 4. Sorry, subtract. तो आई हैव टू माइनस करियर अछि काहे कि एटा अधिक अछि एटा कम अछि, एटा अधिक अछि एटा कम अछि. दिस इज ग्रेटर देन फ्रॉम दिस. जेमती हमरो वेट कला बेले इफ यू हैव मोर जदी गोटे पटे अधिक हो गेला तो ताकू टिके बाहर करिवा, तो सेमती एटे सब्सट्रैक्ट हबो. ओके, सो एटे s1 and s2 आर called as surplus variable and both s1 and s2 greater than equal to 0. Remember दीटे देखो नॉन नेगेटिव पॉजिटिव दैट इज पॉजिटिव वेरिएबल हमरो दीटे देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हबो. सो आमे जेते बेले इक्वेशन करथुबा सेति बेले एठी आमे कोन करथुबा माइनस किबा प्लस
करतुबा. Okay, got it? So these are the two variables, that is one is your slack variable, another is your surplus variables. So ये दीटा हमें भल भावे मन रखिबा whenever हमें जेतेबेले चेंज करतुबा इन इक्वेशन को इक्वेशन रे सेतिक बेले हमें एठी आउ सीधा सीधा इज इक्वल टू पकेबानी, सेतिक बेले हमें ताकू ग्रेटर देन जदि अच्छी माइनस करवा, लेस देन अच्छी ताकू हमें प्लस करवा. ओके, सो दिस इज द सरप्लस एंड स्लैक वेरिएबल. ओके, नाउ गॉट इट. देन हमें सिंप्लेक्स मेथड को जीवा पूर्व हमर जो क्वेश्चन दिया है एलपीपी रे ताकू स्टैंडर्ड फॉर्म रे चेंज करियो पड़ियो, सो दैट हमें एलपीपी माने बाय यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड एलपीपी टाको हमें सॉल्व कर परिबा. ओके, सो कौन कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म रे हबो तो सेटा मु देबी. बिफोर गोइंग टू द स्टैंडर्ड फॉर्म आमे जदि स्टैंडर्ड फॉर्म को कन्वर्ट न करिकरी करि दबा ताहले हमर सॉल्यूशन टा एलपीपी रो बाय सिंप्लेक्स मेथड रे भूल हो जिवो. सो आमे ताकू प्रथमे सजेया पड़िबो स्टैंडर्ड फॉर्म रे. जेमती मु दिस इज वन ऑफ द माने स्टैंडर्ड फॉर्म रो कैरेक्टरिस्टिक्स जे जदि तमरो इन इक्वेशन आकार रे अछि ताकू इक्वेशन चेंज करिवो. इन इक्वेशन को इक्वेशन जेमती ग्राफिकल रे करतले सेंती कले हबनी. You have to either use your surplus or slacked variable. आउ अगर आउरी वेरिएबल्स आसी पारे. ओके, नुआ वेरिएबल्स तो इठी हमको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स. ओके, ओके. सो एक स्टैंडर्ड फॉर्म रे नंबर 1, that is step 1. The objective function must be in the maximization form. Okay, objective function must be in the maximization form. केमती हबो मु नेक्स्ट क्लास रे कहबी. इफ इट इज नॉट देयर, इफ नॉट जदि नथिबो जेड मैक्सिमम रे हमको करिया को पड़िबो. स्टेप 2. ओके, स्टेप 2 रे all the constraints should be converted into equations. Okay, all the constraints should be converted to equation by using slack or surplus variables. कोई भी स्टेप 3 भले भावे एटा देखी था. all variables must have non-negative values. all variables must have non-negative. as I told you question टे हमर जो x1 x2 जेते सब अननोन वेरिएबल थिबो से सब जेक हमें नॉन नेगेटिव. राइट साइड एलिमेंट ऑफ ईच कांस्टेंट शुड बी मेड नॉन नेगेटिव. राइट साइड एलिमेंट्स ऑफ ईच कंस्ट्रेंट must be
नॉन नेगेटिव if not जदि not थिबो ओके these are the 4 points you have to follow भलो भाबे देखिता बाकी आरो क्लास रे आरो एग्जांपल्स देखि हमें कंटिन्यू करबा ओके दीटा प्रॉब्लम दिया आइछि से दीटा प्रॉब्लम हमर ग्राफिकल एतिकी ही हबो आ ग्राफिकल हमरो नाही देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स बट हमें क्लास रे करबा नहीं now I will go for simplex okay thank you have a nice day